बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे ज़ू जियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में। ज़ू जियोग्राफिकल रीजन्स जो हैं असल में होते क्या हैं, तो इसका पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ज़ू जियोग्राफिकल रीजन्स। ज़ू मीन एनिमल्स, जियो मीन अर्थ, ग्राफिकल मीन worldwide distribution. So it is the study of the worldwide distribution of animals in different regions. In this section we will study divisions, geographical range and physical features and climate of that regions in which animals are distributed. First of all we will see Australian region. Australian region, this is the map that show the Australian region. According to zoo geography, we have divided it into different geographical regions. The largest one is Palearctic, then Nearctic, then below the Nearctic Neotropical region, and here below the Palearctic Ethiopian, Oriental, and Australian region. Australian region is the smallest one, and it has no land connection with the other regions. Okay, now we will see that which regions are included in Australian regions, which parts are included. Here mention that New Zealand, Pacific Islands are not included in Australian region. In Australia, these are the animals which are present: Tasmania, New Guinea, a few smaller islands of Malay Archipelago. Archipelago is a chain of islands, so smaller patches of. Sorry, I have misinterpreted. Again, I will explain you that here are some regions that include Australia is Australia continues with Tasmania, New Guinea, smaller islands of Malay Archipelago. Archipelago is a chain of islands known as archipelago. So a chain of smaller islands, patches of Malay is known as Malay Archipelago. Now Australian regions, we will see in detail Australian region. It includes whole Australia and Tasmania. These are the locations which are included in Australian region. Australia and Tasmania almost whole included in Australian region. This region is located towards southwest of Pacific Ocean. ये जो रीजन है ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन के साउथ वेस्ट साइड पे मौजूद है। यानी कि अगर हम बात करें कि हमारी सर वाली साइड से हेड साइड पे नॉर्थ है, फीट वाली साइड पे साउथ है, और हमारे राइट वाली साइड पे ईस्ट और लेफ़्ट वाली साइड पे वेस्ट है। सो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट विल बी टूवर्ड left side and lower side of Pacific Ocean. In this region, very peculiar fauna is seen. Fauna mean animals, a special kind of animals. Peculiar fauna mean special kind of animals are seen here. It is because this part is separated from the mainland by a big stretch of ocean. Main reason of peculiar fauna is that this region is separated from big ocean, from other land parts by big ocean. It shows tropical and temperate climate. Tropical mean here temperature is hot and moderate. It is in this subregion 34 genre of marsupial included. So it is also known as home of marsupials. Marsupials mean pouched mammals.
so like kangaroo. So that is why Australian region second name is House of Marsupials. It is most important MCQs. Tailed amphibians are reported in this region. Amphibians having tails are also reported in this region. Flightless birds like emus are also included in this region. So next one is location, that where is Australian region located. The summary of the whole that we have learned before is that ऑस्ट्रेलियन रीजन जो है वो ऑस्ट्रेलियन रीजन दो में दो जो है वो ज़मीन के हिस्से आते हैं. एक उसमें तस्मानिया, एक न्यू गिनिया है. तस्मानिया और न्यू गिनिया उसमें मौजूद है. उसके अलावा उसमें पैकुलर फाना मौजूद है. पैकुलर फाना इस वजह से मौजूद है क्योंकि हमारा जो ऑस्ट्रेलियन रीजन है वो बाकी की ज़मीन से जो है वो ओशन के ज़रिए डिस्कनेक्ट हो गया है. उसके दरम्यान में ओशंस फैले हुए हैं और इस वजह से उसका फाना पैकुलर है. उसमें 2-3 किस्म के जानवर पाए जाते हैं. नंबर 1 जो है वो उसमें हमारे पास फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, इम्यूज़ वगैरह मौजूद है. नंबर 2 हमारे पास उसमें टेल्ड एम्फीबियंस मौजूद है. नंबर 3 हमारे पास जो है वो उसमें मार्सूपियल्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और इस वजह से उसे हाउस ऑफ मार्सूपियल्स भी कहा जाता है, जो कि सेकंड नेम है ऑस्ट्रेलियन रीजन का. अब हम लोकेशन की तरफ आते हैं. हमने ये भी पढ़ा है कि ये साउथ वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन के साउथ वेस्ट साइड पे मौजूद है. इट इंक्लूड होल ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया, तस्मानिया और चंद एक इसमें आइलैंड्स आ जाते हैं जो कि इंडोनेशियन आर्कीपेलगो, मलायन आर्कीपेलगो. इंडोनेशियन आर्कीपेलगो में मुलस्का, जावा, सुमात्रा, कैलिमेंटन, सेलेबस आ जाते हैं. आर्कीपेलगो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कहते हैं. जैसा कि मैंने पहले भी बताया, न्यूजीलैंड एंड अदर पैसिफिक आइलैंड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस रीजन बाय सम ऑथर्स. कुछ ऑथर्स के मुताबिक जो है वो अगर हम स्टडी करें तो वो न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड को इसमें शामिल नहीं करते. दे आर आल्सो कॉल्ड एज एंशिएंट और कॉन्टिनेंटल और पैसिफिक आइलैंड्स. और न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड्स को एंशिएंट कॉन्टिनेंटल या पैसिफिक आइलैंड्स भी कहते हैं. दिस इज़ बिकॉज दैट दे हैव देयर ओन फाना एंड यूनिक स्पीशीज़. क्या रीज़न है कि कुछ ऑथर जो है वो न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड्स को शामिल नहीं करते ऑस्ट्रेलियन रीजन में, क्योंकि उनका फाना जो है वो यूनिक किस्म के यूनिक स्पीशीज़ उधर मौजूद हैं. इस वजह से उन्हें एंशिएंट कॉन्टिनेंटल या पैसिफिक आइलैंड्स कहा जाता है. ऑस्ट्रेलियन रीजन इज़ द ओनली रीजन विदाउट एनी लैंड कनेक्शन और ये इसकी खूबी है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्ट्रेलियन रीजन दैट इट हैज़ नो लैंड कनेक्शन. It is separated from rest of the world in Upper Cretaceous. Upper Cretaceous में if someone know the geological time scale, then it will definitely know Upper Cretaceous. Upper Cretaceous में ये जो है वो सेपरेट हो गया था. पहले जो है वो इसको बाकी लैंड का ही एक पार्ट समझा जाता था, लेकिन अपर क्रिटेशियस में ये बाकी दुनिया से जुदा हो गया. So it is the map that show Palearctic region, Nearctic region, and here is another map. Australian region location in Australian region, ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन रीजन को दिखाया गया. ऑस्ट्रेलियन रीजन की नॉर्थ साइड पे जो है वो इंडोनेशिया मौजूद है और पपुआ न्यू गिनिया मौजूद है. और अगर हम इसकी जो है वो इधर बात कर लें वेस्ट साइड पे, तो वेस्ट साइड पे जो है वो इसमें न्यूजीलैंड मौजूद है. और अगर हम ओशंस की बात करें तो इसके नॉर्थ वाली साइड पे, नॉर्थ और साउथ वाली साइड पे जो है वो इंडियन ओशन मौजूद है. और नॉर्थ ईस्ट की साइड पे जो है वो कोरल सी पैसिफिक ओशंस मौजूद है, जबकि नॉर्थ वेस्ट की साइड पे इंडियन ओशंस मौजूद है. यहाँ हमारे पास जो है वो इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ वाइट कलर में दिखाया गया है. इंडोनेशियन आइलैंड में कौन कौन से एरियाज शामिल हैं. उसमें हमारे पास मैडन है, पेकनबरू है, सुमात्रा है, पेलम्बेंग है, कैलिमेंटन है और हमारे पास जो है वो जावा, सुमात्रा, सेलेबस ये सारे शामिल हैं. मुलस्का और इधर से हमारे तो
ये सारे जो हमें ऑफ वाइट में नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो इंडोनेशियन आइलैंड हैं। अब हम सब रीजन्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलियन रीजन इज डिवाइडेड इनटू 4 सब रीजन। नंबर 1 ऑस्ट्रोमलायन, ऑस्ट्रेलियन सब रीजन, पोलिनेशियन सब रीजन एंड न्यूजीलैंड सब रीजन। Polynesia. Poly mean many and Nesia mean island. Group of Pacific islands known as Polynesia. पैसिफिक आइलैंड के ग्रुप को पोलिनेशिया कहते हैं। पोली का मतलब मैनी, निशु मीन आइलैंड, इज सब रीजन ऑफ ओशियनिया made up of more than 1000 islands, and Oceania is a group of 1000 islands scattered over the central and southern Pacific oceans. हमने यहाँ तक सीखा कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से एनिमल्स शामिल हैं, कौन कौन से जो है वो रीजन्स शामिल हैं ऑस्ट्रेलियन रीजन में, और अब हम सब रीजन्स को देख रहे हैं। सब रीजन्स जो हमने पढ़ लिया, हमारे पास 4 हैं, ऑस्ट्रोमलायन है, ऑस्ट्रेलियन है, पोलिनेशियन है, न्यूजीलैंड है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो क्लाइमेट किस तरह का है ऑस्ट्रेलियन रीजन में। क्लाइमेट हमने पहले ओवरऑल देखा था। ओवरऑल में हमारे पास आया था कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट है। क्लाइमेट इसमें नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रीजन जो है वो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनिया लाइज विद इन ट्रॉपिक्स विद हाई समर टेम्परेट एंड मच अदर लाई एरिया इन कवर्ड बाय रेन फॉरेस्ट। नॉर्थ वाली साइड पे जो हमारे पास नॉर्थ न्यू गिनिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे मौसम गर्मा जो है वो तकरीबन ठंडा होता है, जबकि बाकी जो है उसको रेन फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ होता है। बाकी एरिया को इंटीरियर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का जो है वो हॉट और ड्राई है, लेकिन वाइल फर्दर साउथ द क्लाइमेट बिकम्स मेनली टेम्परेट। और अगर हम साउथ की तरफ जाएँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होता है। फाना ऑफ ऑस्ट्रेलियन रीजन की बात करें, मैंने जो जोग्राफी कर साइंटिस्ट workers thought that Australia and America might have connected by landmass. This landmass is known as Gondwana landmass because this landmass fauna of Australia and America are similar. रीज़न होती है किसी न किसी बात के पीछे। साइंटिफिक रीज़न जो है वो ये है कि साइंटिस्ट ऐसा क्यों सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कभी अमेरिका का पार्ट हुआ करता था बाय गोंडवाना लैंडमास, क्योंकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का फाना जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन कुछ टाइम के बाद गोंडवाना लैंडमास जो है वो उन्होंने कहा कि जिसके ज़रिए अटैच थे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये सब मर्ज हो गया, ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हो गया, ऑस्ट्रेलियन फाना बिकम्स आइसोलेटेड। उसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन फाना जो है वो तनहा रह गए और अमेरिकन मैमल्स जो है वो पहुंच ही नहीं सके जो है वो ऑस्ट्रेलिया तक, क्योंकि लैंड कनेक्शन ही नहीं था ना। ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स जो है वो अमेरिकन एलिमेंट्स तक पहुंच सकते थे, तो ऑस्ट्रेलियन फाना जो है इस तरह अलग हो गए। यूथेरियन मैमल्स जो है वो इन पर अब कोई हमला करने वाला नहीं था। कार्निवोरस यूथेरियंस मौजूद ही नहीं थे ऑस्ट्रेलियन रीजन में, इस वजह से उनको डेवलप करने का मौका मिला, तो वो वहाँ पे फुली डेवलप कर गए। और इसी वजह से जो है वो उनका, क्योंकि प्रीडेटर वहाँ मौजूद नहीं था, तो वहाँ पे वो उनकी स्पीशीज डोमिनेंट हो गई। मार्सुपियल्स हैव इंक्रीज इन देयर नंबर। मार्सुपियल्स का नंबर बढ़ता गया और इसी तरह इतना बढ़ गया कि हम आज उनको ऑस्ट्रेलियन रीजन को होम ऑफ मार्सुपियल्स कहने पर मजबूर हैं। मैनी इंपॉर्टेंट मार्सुपियल्स वर डेवलप्ड इन दिस रीजन। होम ऑफ मार्सुपियल्स कहा जाता है, तो कौन कौन से मार्सुपियल्स आते हैं यहाँ पे? हमारे पास शुगर ग्लाइडर है, तस्मानियन वुल्फ है, मार्सुपियल मोल है, टाइगर कैट है, कोआला है, बैंडिकूट है, वॉम्बैट है, कैंगरू है, मार्सुपियल रैट है, बैंडिड आंटीटर है। ये सारे के सारे जो है वो एमसीक्यू के तौर पर भी आ सकते हैं कि कौन कौन से पाउच्ड मैमल्स यहाँ जो है वो मार्सुपियल्स मौजूद हैं ऑस्ट्रेलियन रीजन में। अब ओवरऑल बात करें कि कितनी फैमिलीज़ हैं, कितने मेंबर हैं किस फैमिली के ऑस्ट्रेलियन रीजन में, तो 134 फैमिलीज़ हैं टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की, और 30 जिनमें से पैक्युलर हैं। और वो पैक्युलर कौन कौन सी है मैमल्स की? 8 स्पीशी हैं, बर्ड्स 17 है, रिप्टाइल्स 3 है, एम्फीबियंस 2 है।
उसके बाद जो है वो ये एनिमल मैप दिखाया गया है ऑस्ट्रेलियन रीजन्स का। और नेक्स्ट वन जो है वो ऑस्ट्रेलियन रीजन का फाना। द वर्टिब्रेट फाना इज़ वेरी थिन। वर्टिब्रेट फाना बहुत कम है। इट लैक बोथ वेराइटी एज वेल एज नंबर ऑफ फैमिलीज। वर्टिब्रेट फाना में कम है, उसके अलावा इसमें वैरायटी और नंबर ऑफ फैमिलीज दोनों ही कम है। बट इट हैज़ सेवरल यूनिक जॉनरा। The most peculiar fauna are in the absence of highly evolved mammals and it contain many primitive forms. इसमें जो है वो primitive forms में animals मौजूद हैं। peculiar features जो हैं वो absent हैं। marsupials और monotremes जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन्स में पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलियन रीजन में। ऑस्ट्रेलियन रीजन में fauna फिशेस की बात करें तो फ्रेश वाटर फिशेस में ऑस्टियोग्लॉसिस, न्यू Ceratodus, but both have restricted distribution. आगे ऑस्ट्रेलियन रीजन में एम्फीबियन की बात करें तो एम्फीबियंस चंद एक हैं। टॉड्स हैं, टेल्ड एम्फीबियंस हैं, जो है कॉमन टॉड्स हैं, टेल्ड एम्फीबियंस मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलियन रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो फ्रॉग हैं लाइक हाइला एंड राना। ऑस्ट्रेलियन रीजन के रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स हैं वो मॉडरेटली वेरिड हैं। 2 फैमिलीज एक्सक्लूसिव हैं। वो कौन कौन सी 2 फैमिलीज एक्सक्लूसिव हैं? क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, कीकोस, किंग्स, वेराना, स्टिफ्लोस, पैथन्स एंड सम कलप्रिड्स जो है वो न्यू गिनिया में और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। पिथन्स एंड टाइगर स्नेक्स जो है वो अबंडेंट हैं। अगर हम एव्स की बात कर लें, फौना एव्स, there are 3 exclusive families of parrots and cuckoos: lories and pygmy parrots, frogmouths, wood swallows, flowerpeckers and megapods are shared with oriental regions. ये वो एनिमल्स हैं जो ओरिएंटल रीजन में भी मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलियन रीजन में भी मौजूद हैं। फीजेंट्स मीन like the peacock animals, finches, barbirds, woodpeckers are absent. Total 10 families are exclusive. These are the pictures of birds. Peacock belong to pheasant family. Cargo, white color, honey eater. Here are bowerbird, sackbird birds. So this was the lecture, and next part will be shared inshallah soon. So hope you will be understand this lecture. You will understand completely. Ask any question in comment section. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।